A very good o'clock to all the students. Here I am Amisha, ma'am, your physics teacher. Students, today I am here to start our next topic of the refraction chapter, which is factors affecting the angle of deviation. We have already studied about the angle of deviation, where today we are just going to discuss factors affecting that angle of deviation. Okay, do remember that it will come in 2 to 3 marks in your board exam, that what are the factors on which the angle of deviation depends. So do remember, or it affects. So it is, first one is the angle of incidence I. Okay, second one is the material of prism. Here material stands for, you can say, refractive index, where I have denoted it with Ri. Okay, third one is the angle of prism, that is capital A, and fourth one is the color or wavelength of light used. Okay, now let's discuss about it in some detail. That is, on incident ray, if I am going to ask you what all factors which are given above on incident ray when it is refracting to the surface, from the above 4 points, which are the points which are going to depend on that incident ray? Will you be able to tell? Students, there should be a point number 1 and point number 4. Okay, point 1 and point 4 are going to depend, are the factors that are depending on the incident ray. The angle of incidence, definitely it could be, and the color or wavelength of light used. Okay, on these 2 points there is our commandment or control, leaving the other 2 points. That is, these 2 points are under control of us. These 2 points, that is the angle of incidence, it depends on the incident ray, the way we are making it to incident, है ना? Similarly, it may also or it may also, you can say, the fourth point, that is the color or the wavelength of a light, is also under our control. Okay, while with what all intensity the incident rays is striking to the refracting surface, right? Like example, if I am taking, why I am not using point number 2 and 3, why they are not in under our control? Because if I am bringing a prism of 60 degree, so you must say that we can't change the angle. Can't we? Can we change it? No. I have already taken the prism of 60 degree angle. So angle cannot be changed, na? That is why it is not under our control. And material also means refractive index, jitna angle at that point of view, usi ke regarding your refractive index would be there. So material and angle are not under our control. So you can say, ma'am, for incident ray, the factors which are depending are the angle of incidence and the color or the wavelength of the light used, right? Let's move over that dependence of angle of deviation on the angle of incidence. Sabse pehla point we are going to discuss how the angle of deviation is depending on the angle of incidence. Okay, let us plot a graph, students, between angle of deviation, that is delta, and angle of incidence, that is I. Okay, when I am plotting a graph between these two, I could see a curve in such manner. See this type of curve. Okay, here angle of deviation is on y-axis, whereas angle of incidence is on x-axis, horizontal axis. So as I am increasing the angle of incidence, angle of deviation decreases. On increasing the angle of incidence, angle of deviation decreases. Understood? If you could see in graph also, it is visible. Correct? That means I could say that it can't be proportional. Proportional means on increasing angle of incidence, angle of deviation is again increasing. That means straight line graph nahi mil raha na hame. Understood? Then further increasing angle I after a certain point, students, delta, that is angle of deviation, started to increase. What I said right now? On further increasing angle I, that is angle of deviation, at certain point means एक ऐसा point होगा जहाँ पर angle of, you could see here also, सबसे ज़्यादा minimum आएगा. कौन सा? The value of angle of deviation सबसे ज़्यादा minimum होगी यहाँ पर, है ना? After that, when again you are increasing the angle of incidence, you could see that angle of deviation started to increase. Okay, so from this graph, the minimum value of angle of deviation is point number 2. I have given this is point 1.
this is 0.2, whereas this is 0.3. Point number 2 is the point where we are getting the minimum value of angle of deviation. Understood? So it is called as minimum angle of deviation. Understood or not? From the name itself we can calculate na. Okay, what I could say, the minimum value which we are getting on a particular angle, that could be called as the minimum angle of that deviation. Understood? So minimum angle of deviation is only be achieved when angle I is equal to angle E. Here angle E is angle of emergence. ये किसके बीच में बनता था? In the previous video I have explained. It is between angle which is between the normal and emergent ray. Again I have explained here. Okay. So minimum angle of deviation आपको कहाँ मिलेगा? कब अचीव होगा? When angle of incidence is equal to angle of emergence. Now the relation is there between angle of deviation delta, angle of incidence and angle of emergence, which we have discussed in the derivation of prism in the previous video. If you have seen, if you have watched, I am again recalling that formula. It is angle of prism plus angle of deviation is equals to angle of incidence plus angle of emergence. ये एक formula हम लोग derive करके लाए थे. Understood? Now, while taking this, in place of angle of deviation, I could write as delta minimum, that is minimum angle of deviation. If I am talking of minimum angle of deviation, there I could write this. For I is equals to E, मिनिमम कब अचीव होगा? जब I बराबर E हो. तो यहाँ पर I E के प्लेस पर आप I रख सकते हैं ना. तो I प्लस I, हाउ मैनी I? 2I. ओके, तो एंगल दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2I and A on transposing here becomes minus 2I minus A. This is a formula to be calculated. Okay students, hope so it is clear to you. Let's move further. So that is dependence of angle of deviation on the material of the prism. Second point, second factor. Here I am talking about the angle of deviation's dependence on the material of prism. Here material of prism I have taken the another name as refractive index. We very well know that if n here is a symbol used for the refractive index of any medium, right? If n increases, then refraction increases ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस, और यू कैन से बेंडिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेस. बेंडिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेस. तो देयरफॉर बेंडिंग ऑफ लाइट कहूँ या डेविएशन कहूँ इज सेम ना. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीजमेंट इज मीन्स रिफ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड. रिफ्रैक्शन मतलब क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट, और यू कैन से डेविएशन ऑफ लाइट ना फ्रॉम व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, राइट? So deviation is increasing, therefore angle of deviation increases. So here I could relate that if the refraction increases, then should the angle of deviation increases? This is a question. So answer could be yes. If refraction increases, bending or of light or its deviation you can say increases. So angle of deviation delta increases. Here I have also symbolized it in a symbol form, that is n, that is refractive index on increasing, रिफ्रैक्शन इंक्रीजेज, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज. यहाँ से क्या रिलेट हुआ? दैट इज़ हम निकाल क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिपेंडेंस एंगल ऑफ डेविएशन पे ना. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कुड से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन. दैट मीन्स मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन. अंडरस्टूड? लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म ए. It is very simple. As the angle of deviation increases, angle of prism also increases. We have talked about it in a prism concept in my previous video. Do watch it, you will be able to understand it. Fine. So you could relate that angle of deviation is directly proportional to angle of prism, that is A. Let's discuss the fourth factor that is dependence of angle of deviation on the color or wavelength of light. Students, I have discussed about it. If you could relate that, a higher wavelength of light, जितना wavelength higher होगी किसी light की, उतना ही lower उसका क्या होगा? refractive index. जितना higher the wavelength, lower will be its refractive index, or you can say lower will be its refraction. Like red light ना, red light is high in wavelength, सबसे ज़्यादा, and it's deviates less, सबसे कम less deviate होती है. deviate का मतलब है bending कम,
that is refraction is less or refractive index is less. So here I could relate more will be the wavelength, less would be its refraction, or you can say angle of deviation कितना हो जाएगा, very less, right? So if refraction is less, then angle of deviation will also be less, as refraction is what, bending or deviation of light. Understood? हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ के बीच में और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में डिफरेंस, तो वो यहीं से ही कैलकुलेट हो गया कि एज वेवलेंथ इंक्रीजेज एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज, दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू wavelength. Hope so students it is clear to you. So students, these all were the factors which are affecting the angle of deviation. Understood? Let's move to the further topic, that is real and apparent depth. Okay, something which is not real is known as apparent. Understood? Let's take the example. I have taken a beaker or a vessel. When we fill a water in a bowl, ओके ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिफ्रैक्शन के केस पर फर्स्ट वीडियो में, राइट? व्हेन वी हैव टेकन एनी वेसल और बाउल, द कॉइन सीम्स टू बी रेज्ड. ऐसा क्यों, डिस्कस हो चुका है. जब कॉइन यहाँ पर था, सपोज कीजिए कॉइन है, एनी ऑब्जेक्ट है, एंड वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम हियर, तो अब तो नहीं दिखा, बट एज फार एज हमने वाटर पोर करना शुरू किया एंड कॉइन सीम्स टू बी रेज्ड, उठा हुआ सा नज़र आने लगा ऊपर, if you have practically observed it. तो when how is it, ऐसे क्या हो रहा था, जब कॉइन यहाँ पर था, लाइट रे जा रही थी, इंसिडेंट हो रही थी ऊपर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ऐसे डेविएट हो गई आइज़ की तरफ. और हमेशा याद रखिएगा कि आइज़ की टेंडेंसी होती है कि वो जो लाइट आ रही है उसको पहले बैकवर्ड प्रोड्यूस करती है, और जहाँ पर जा कर के वो दोनों मीट करती हैं वहाँ पर वो उसको अपना इमेज मान लेती है. यानी एज अकॉर्डिंग टू योर आइज़, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया था अपेरेंट ऑब्जेक्ट या इमेज बोला था, राइट? इसको हमने बोला था इमेज. अंडरस्टूड? ये ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट. इफ़ इट इज़ रियल ऑब्जेक्ट तो इट इज़ अपेरेंट ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ से जो मीडियम है वाटर का, यहाँ से लेकर के लास्ट तक ये क्या होगा, इसकी रियल डेप्थ ऑफ कॉइन. अंडरस्टूड? और ये जो रह गई रिमेनिंग नीचे स्पेस रह गई है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपकी, ये क्या है, टेल मी फास्ट व्हाट इज़ इट. यहाँ जहाँ पर आपका अपेरेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ तक की ये है अपेरेंट डेप्थ, ये AD. अंडरस्टूड? नाउ इफ़ इट इज़ AD, इट इज़ RD, तो ये जो रह गई है क्या हो गई, RD माइनस AD, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ. तो व्हाट इज़ रियल डेप्थ? रियल डेप्थ एक्चुअली स्टूडेंट्स द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन मीडियम. किसी भी मीडियम में जो एक्चुअल डेप्थ प्रेजेंट होती है हमारे रियल ऑब्जेक्ट की इज नोन एज रियल डेप्थ. वेयर इज अपेरेंट डेप्थ की अगर बात करें तो द डेप्थ विच अवर आइज ऑब्जर्व्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारी आइज ऑब्जर्व करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ इज नोन एज इट्स अपेरेंट डेप्थ. अब जो ये तो आपका क्या है, अपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये इतनी तो हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की आपकी अपेरेंट डेप्थ, राइट? ये हो गई रियल डेप्थ. तो ये जो बची ये क्या है, रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. RD दैट इज़ रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, तो ये निकल आएगी. और इसी का नाम है स्टूडेंट्स शिफ्ट. इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं शिफ्ट. तो शिफ्ट इज़ व्हाट, RD माइनस AD, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ. अंडरस्टूड? तो रिफ्रैक्शन कैन बी मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्शन को आप कैसे मेजर करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. सो द मोर इज रिफ्रैक्शन, मोर विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो देर इज अ रिलेशन अमंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ. क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू RD अपॉन AD, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. नाउ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, इसका हम एक डेरिवेशन करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिराइव करके लाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. उसके लिए वी हैव टू मूव इट और वी हैव टू गो थ्रू 5 स्टेप्स इन अवर डेरिवेशन. फर्स्ट है डायग्राम जिसे आप समझेंगे. सेकेंड स्टेप है एंगल को पहचानेंगे. थर्ड स्टेप है फाइंडिंग साइन आई एंड साइन आर. ओके, एंड फोर्थ स्टेप्स साइन आई अपॉन साइन आई एंड साइन आर को निकालने के लिए वी विल यूज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज स्नेल्स लॉ.
फोर्थ स्टेप को निकालने के लिए यू विल यूज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। आई एम सॉरी, थर्ड में नहीं, फोर्थ में, राइट। फिफ्थ स्टेप इज अजम्पशन, अंडरस्टूड। सो लेट अस कंसीडर, अगर आप यहाँ पर देखिए तो व्हाट आई हैव शोन हियर अ डायग्राम इन विच ये एक लाइन है जो हमको ये आइडेंटिफाई करा रही है कि ऊपर वाला मीडियम तो एयर मीडियम है, रेयरर, नीचे वाला है वाटर, ठीक। अब यहाँ से अगर आप देखो, इफ़ आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम हियर, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज़, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, आई हैव टेकन अ कॉइन हियर, ठीक है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट ओ कॉइन। यहाँ से निकल रही है एक इंसिडेंट रे विच आफ्टर स्ट्राइकिंग द मीडियम, ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये एक नॉर्मल बनाया आपने, तो ऑब्वियसली जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट टूवर्ड्स, अंडरस्टूड। तो ये अवे चली गई, राइट। अब ये तो गई यहाँ पर, हमारी आई जब इसको देख रही है तो वो क्या करेगी, इसको बैकवर्ड करेगी, पीछे करेगी, ठीक। उसी तरह मैंने दूसरी एक और इंसिडेंट रे ली जो यहाँ से जा रही है स्ट्रेट जा रही है, तो नॉर्मल भी स्ट्रेट है, तो ये नॉर्मल पर कोइंसाइड कर रही है स्टूडेंट्स, कोइंसाइड यानी एक के ऊपर एक, फाइन। अब जब ये कोइंसाइड कर रही है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो, सिंस इट इज़ कोइंसाइडिंग तो नो एंगल विल बी देयर। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो ज़ीरो। और जब आपने ये वाली इंसिडेंट रे जब आपकी आई ने ऑब्जर्व करी तो उसने उसको बैकवर्ड पीछे किया, क्यों, उसको अपना ऑब्जेक्ट देखना था कहाँ है, द पॉइंट एट विच बोथ द रे वर स्ट्राइकिंग, जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पर उसको एक ऑब्जेक्ट दिखा, उसको लगा यही मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला नहीं दिखा ये, तो इसको हमने आई लिख दिया, इमेज, फाइन। अब ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड वाला, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का है। अगेन दिस इज, यहाँ पर ये क्या, नाउ जस्ट टेक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, तो ऊपर से यहाँ तक पूरी रियल डेप्थ हो गई, ये आपकी इमेज मिली है, अपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गई, अपेरेंट डेप्थ। ओके, फर्स्ट स्टेप डायग्राम क्लियर हो गया पूरा। सेकेंड स्टेप है एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स की बात करेंगे तो क्या है, ये है आर। अब अगर ये है आर तो बेटा ये भी कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एक लाइन है नीचे, ये आप दोनों पैरेलल मान लो, और पैरेलल जब मानोगे तो या इन दोनों को ले लो नॉर्मल्स को, ये भी पैरेलल है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कट कर रही है, तो अगर ये आर बना रही है तो ये भी आर बनाएगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अंडरस्टूड। सिमिलरली जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ डायग्राम, सेकंड स्टेप एंगल्स का क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट इज फाइंडिंग साइन आई एंड साइन आर। उसके लिए सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम ट्राइंगल ए बी और ओ, ये बड़ा वाला ए बी ओ। ए बी ओ जब आप कंसीडर करोगे तो साइन आई, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, राइट। एंगल आई यहाँ है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ए बी, और हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी ये है इस ट्राइंगल की, है ना, तो ए बी अपॉन ओ बी यू कैन से, साइन आई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू हियर ए बी अपॉन ओ बी, तो साइन आई बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन ओ बी। सिमिलरली कंसीडर ट्राइंगल ए बी आई, अब ये छोटा वाला कंसीडर करेंगे, ए बी आई ये वाला। अगेन साइन आर निकालेंगे तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेनस, ए बी अपॉन आई बी हो गया, अब अंडरस्टूड, ए बी अपॉन आई बी लिख दिया, साइन आर बराबर ए बी अपॉन आई बी। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, यू कुड से, केवल उसी को ही नहीं, स्नेल्स लॉ दोनों ही कही जाती हैं, बट यू कैन से कि वो है तो एक पार्ट स्नेल्स लॉ का। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। साइन आई की वैल्यू लगाई आपने, दैट इज ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, साइन आई अपॉन साइन आर कितना है आपका, ए बी अपॉन आई बी, राइट, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आई बी को सबसे ऊपर, यानी ए बी इंटू आई बी अपॉन ओ बी इंटू ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको क्या मिल गया, आई बी अपॉन ओ बी, राइट। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी गॉट इज एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बट स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एयर में है क्या, नहीं ना, इट इज़ देयर इन वाटर, इट इज़ देयर इनसाइड द वाटर। तो हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी हैव टू फोकस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, but what I'm saying, but the medium we are focusing on it is water, so as my object is in water, so refractive index of water with respect to air, इसको opposite कर दीजिए। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन आई बी। फोर्थ स्टेप इज क्लियर। नाउ द फिफ्थ स्टेप विच इज़ द लास्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, दैट इज फिफ्थ इज अजम्पशन, जिसको आप अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करेंगे कि हम ये मानते हैं कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन रियल लाइफ आर सो क्लोज। यहाँ पर डायग्राम में दिखाने के लिए दे आर फार अपार्ट, बट रियल लाइफ में अगर आप कंसिडर करोगे, अज्यूम करोगे, तो दे आर वेरी क्लोज। क्लोज का मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर। अगर ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ स्टूडेंट्स कि लेट्स अज्यूम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर हैविंग अ नेग्लिजिबल डिस्टेंस, तो पॉइंट बी क्या करेगा, बिल्कुल पॉइंट ए पर आ जाएगा, डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना, पॉइंट बी पॉइंट ए पर आ जाएगा, राइट। अब जब ये पॉइंट ए पर आ जाएगा तो क्या होगा इससे, टेल, इससे ये होगा कि पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी, सो पॉइंट बी टू ओ इज रियल डेप्थ। अब पॉइंट बी टू ओ ये क्या थी, आपकी रियल डेप्थ थी, राइट, ये वाली रियल डेप्थ, क्योंकि यहाँ तक था आपका ऑब्जेक्ट। अब ये इधर आ गई तो पॉइंट बी टू ओ, यानी आप ये बोल सकते हो, एंड पॉइंट ए टू आई आपकी क्या थी, छोटी वाली अपेरेंट डेप्थ थी, राइट। तो पॉइंट बी टू ओ क्या है, रियल डेप्थ, वेयर एज पॉइंट ए टू आई इज अपेरेंट डेप्थ। सो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ केम इन वन सिंगल लाइन, चाहे रियल डेप्थ हो चाहे अपेरेंट डेप्थ हो, सब एक लाइन में आ गए जब पॉइंट बी बिल्कुल ए पर आ गया, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, राइट। जब सिंगल लाइन पर आ गया तो ओ बी बिकेम अ स्ट्रेट लाइन। नाउ ओ बी क्या हो गई, पहले ऐसी थी, अब बिल्कुल ऊपर आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। बिकेम रियल डेप्थ एंड कैन बी सेड एज ओ ए। अब क्या कहने लगे आप ओ बी को, क्या कहने लगे, ओ ए कहने लगे। उसी तरह आई बी जो थी वो भी जब बी पॉइंट इधर आ गया तो क्या बन गई, ए आई या आई ई, दैट इज अपेरेंट डेप्थ। यही तो आपका कॉन्सेप्ट है क्या, कि म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या था, ओ बी अपॉन आई बी, और ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी क्या हो गई आपकी रियल डेप्थ, और ए आई बी क्या हो गई अपेरेंट डेप्थ। सी हियर, ओ बी क्या है आपकी, यही तो था आपका विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ओ बी अपॉन आई बी, और ओ बी क्या बन गई आपकी, ये ओ बी क्या थी, रियल डेप्थ थी ना। कैसे बन गई, जब पॉइंट बी को हमने अज्यूम किया कि इसका डिस्टेंस ए से नेग्लिजिबल है, तो ये ए पर आ गया, और ओ ए क्या है, रियल डेप्थ है, तो पॉइंट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गई, तो ओ बी क्या हो गई आपकी, रियल डेप्थ बन गई। अब सिमिलरली आपकी जो आई बी थी बेटा, आई बी, ये जब पॉइंट बी इधर आ गया पूरा ए पर, डिस्टेंस है ही नहीं दोनों के बीच में, हमने अज्यूम किया, तो आई बी बन गया आई ए, और आई ए क्या है, रियल डेप्थ, तो आई बी भी रियल डेप्थ हो गई, राइट। तो पॉइंट आप लिख सकते हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो गई, ओ बी क्या हो गई अब आपकी, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। यही तो आपको प्रूव करके लाना है हियर, सी, राइट। ये था आपका डेरिवेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। सो वी गॉट द फॉर्मूला कि शिफ्ट बराबर रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ से अपेरेंट डेप्थ आप निकाल सकते हो सेकेंड वाले से, क्या कि अपेरेंट डेप्थ को इधर ले जाओ तो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, राइट। जब ये आ जाएगा तो अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू, अब इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है, सेकंड और को फर्स्ट में यूज़ कर देंगे जब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपेरेंट डेप्थ फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। शिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, आर डी माइनस ए डी की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए, आर डी अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट बराबर आर डी कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज अवर अगेन another formula of shift. Hope so it is cleared. Now the factors which are affecting the shift पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं,
First one is refractive index of the medium. How refractive index is affecting the shift? Higher the refractive index, more is the shift. Because क्यों? Higher will be the refraction. जितना ज़्यादा refractive index उतनी ज़्यादा shift, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसका क्या है, refraction. Shift we are representing by capital S. Capital S is directly proportional, you can say, by refractive index, mu of any medium. M is any medium. Second is thickness of the denser medium. More the thickness, more will be the refractive index, as more will be its refraction. जितनी thickness उतना refractive index इसका more, because उतनी उसका refraction more. यानी कि thickness भी किसके directly proportional हो गई, shift के. तो thickness of medium is directly proportional to shift. Now dependence on wavelength of light. Higher is the wavelength lambda, lesser is the refractive index, and lower is the shift. दैट मीन्स जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम, ही हम पढ़ चुके, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उतना ही ज़्यादा लो उसका शिफ्ट. सो एस यू कुड फ्रॉम रिलेट हियर दैट अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो वेवलेंथ क्या है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शिफ्ट के. स्टूडेंट्स ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कंसिडर किया था, राइट, इन केस ऑफ ग्लास स्लैब. Hope so the video is clear to you. Do watch it to understand the chapter, then go to your textbook as well. Thank you for watching the video.